Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshekar, and I welcome all of you again to another interesting episode of Conexia High Flyers. Friends, in these episodes, we talk to you about emerging companies from emerging sectors, and we make an effort to talk to the promoters of such companies. And we talk across sectors and across promoters, and we try to understand the business model of these companies, their business journey, their growth plans, and overall, what is the investment opportunity available for investors for such companies. And friends, today we have got a very interesting company. The company's name is Khajanji Jewelers Limited, and we have the privilege of having Mr. Vikas Mehta, who's the CFO of the company. Vikasji, thank you very much for sparing your valuable time with us today. I'm pretty sure that in this small interaction with us, we'll be able to understand your company's operations in a much better manner. Thank you, sir. Thank you for giving us the opportunity. I am Vikas Mehta, CFO of Khajanchi Jewelers Limited. I am extremely happy to be present here and give you some idea about my company Okay. and about So, some Vikasji, jewelry. yeah, so Vikasji, pehla sawal, which is very basic from our side, is that, if you could tell us, what is the positioning of Khajanji Jewelers, in India within the domestic jewelry market? And clearly, what has been the business journey? How did this business journey start? I believe, is this a first generation effort by the promoters, or is it like, has it come from the first generation to the second generation? And if you could tell us basically what are the products, which company specializes in, whether it is, silver, gold, diamonds, traditional, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए. Yes, sir. सर जैसे खजांची ज्वेलर्स का आपने बताया, ये आके ट्रेडिशनल बिजनेस है हमारा. हमारे चेयरमैन ताराचंद जी मेहता ने इसको चालू किया था. और हमारी कंपनी जो बेसिकली प्रोक्योरमेंट ऑफ बुलियन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स करती है, और उनका गोल्ड ऑर्नामेंट ऑल ओवर इंडिया से बनता है. जो भी स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरर्स है वो सारी जगह से बनता है. हमारा मेजर जो हमारा चेयरमैन है खजांची ज्वेलर्स लिमिटेड के, उन्होंने एट द एज ऑफ 18 वो चेन्नई आए थे. उनका बेसिकली मेथी दाने का बिजनेस था, फेनिग्रिक जिसको बोलते हैं, वो उनका फैमिली बिजनेस था. उसके पेमेंट के रिलेटेड वो चेन्नई आए थे. When he was searching for good opportunities in the market other than the this fenugreek business, he was about to stay for 2 months here related to the payment. He found that jewelry industry has a good scope and good demands in the South India. As you are aware, 40% of the demand is completely in the South India alone for gold ornaments. And in 1971, he thought of doing the job here in Chennai. And he have joined a store which was majorly dealing in gold buying and selling of old gold ornament that time. Then they have started with new gold ornaments also. Soon in 1981, when he entered the gold wholesale market with his own brand called Vijay Jewelers. And in 1991, with the support of his family members, his brothers, Sampadraj Mehta and Ashok Kumar Mehta, in 1991, he came up with a big shop in the name of Khazanchi Jewelers. In 1996, with a huge addition of B2B and B2C clients, then he converted Khazanchi Jewelers into private limited company, and customer list was adding hugely. We were getting a thrilling response over the company. Company was growing multifoldedly. In April 2023, the company got into limited company, and we are happy to announce on 7th August 2023, our company got listed with diluting its 25% stake at 97 crores, which was priced at 140 rupees per share. And happy to share, today's share price is around 320 to 350 ranging from. And going forward, majorly we create our specialized design and give it to the skilled manufacturing companies who specially make this design for us. These companies are from Kolkata, Mumbai, Rajkot, Coimbatore, all over India. In domestic market, we are one of the biggest B2B and B2C suppliers and a very familiar name among the South India.
Okay. So fine, I think Vikas ji very nicely articulated. Now tell me one thing: when you say designing, you got a network from Rajasthan, Mumbai, Kolkata. So basically, you mean you have developed a network of designers, or do you have your in-house designing team also? पहले तो ये बताइए, और दूसरा मेरे को बताइए कि सर, are our sales largely concentrated in South India, or are we selling products across pan India? Since you said you are also in the B2C business, सो आप अपना ज्योग्राफिकल रीच कितना बड़ा है? हम चेन्नई में ही प्रेजेंट है, या हम दूसरे स्टेट्स में भी हमारा प्रेजेंस है? इसके बारे में बताइए। सर, हमारा जो इन हाउस डिजाइनिंग है उसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजाइन होता है। जैसे अभी आप जानते हैं टेम्पल ज्वेलरी होती है, तो टेम्पल ज्वेलरी का जो डाइस है वो बनता है, समझिए अपना कोयम्बतूर में बन गया, और उसी को ले जाके फिर से मुंबई के मैन्युफैक्चरर को देके उसका फ्यूजन होता है। तो क्या होता है, वो चीज डिफरेंटली आउटकम आती है, रिजल्ट उसका डिफरेंट आता है। तो हमारा प्रोडक्ट जो है साउथ इंडिया में बहुत डिमांड पे है, और हम लोग उसको पैन इंडिया पे ले जाने की ट्राई कर रहे हैं। और हमारा मेजर ऑफ क्लाइंटल बेस आज 90% करीब साउथ इंडिया है, आंध्रा है, कलकत्ता, तिरुपति एरियाज में है, और डीप साउथ तमिलनाडु में है। ठीक है, अंडरस्टूड विकास जी। नाउ विकास जी, टेल मी वन थिंग कि बेसिकली नॉर्मली फेस्टिवल के टाइम पे या कोई त्योहार के टाइम पे अपना एवरी फेस्टिवल और त्योहार के टाइम पे कोई नया कलेक्शन आप लोग लॉन्च करते हो, या बेसिकली ये जो वर्क जो होता है, ये इसमें कितनी महीनों की तैयारी होती है? जैसे कि दिवाली है, फिर साउथ में ओनम इम्पोर्टेंट होता है, फिर दशहरा है, फिर क्रिसमस है। तो इसके बारे में बताइए कि हमारा धंधा पहले तो क्या इज इट सीजनल, और सेकेंडली अगर ये कलेक्शंस हम करते हैं, तो हम जैसे इंटरनेशनली विंटर कलेक्शन होता है, स्प्रिंग कलेक्शन होता है, तो ऐसे तरह से मार्केटिंग हमारे प्रोडक्ट्स का भी होता है? आई मीन स्पेसिफिकली सिंस इट्स अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, इसके बारे में इस तरह का ही प्लानिंग हम लोग करते हैं। जैसे आपने बताया प्रोडक्ट रेंज के बारे में, तो हमारा कंपनी जो है गोल्ड ऑर्नामेंट में सारा प्रोडक्ट बनाती है, चेन्स, बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, हारम, नेकलेस, उड्यानम, वंकी, पेंडेंट, रिंग्स, इयररिंग्स, लाइट वेट ज्वेलरी। तो मेजर ऑफ हमारा जो रोल है, हमारा 70% जो होता है प्लेन गोल्ड ज्वेलरी पे फोकस ज्यादा होता है। जैसे साउथ इंडिया में ज्वेलरी को एज ए ह्यूज इन्वेस्टमेंट जैसे देखा जाता है, फैशन ज्वेलरी की जगह नहीं देखा जाता है, इसको एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाता है। तो क्या होता है, जो आइटम पे ज्यादा स्टोन्स वगैरह नहीं लगे हुए हैं, तो क्लाइंटल उस आइटम का रोटेशन बहुत फास्ट होता है, और जब भी उनको रिक्वायरमेंट होती है तो इजीली एनकैश हो जाता है, क्योंकि वो एंड कंज्यूमर तक हमारा जो ये प्रोडक्ट है 3 to 4% वेस्टेजेस में उनको दे देते हैं हम। और जो पिछले 10 सालों से अपन कंटिन्यूसली प्राइस हाइक देख रहे हैं गोल्ड में, लोगों ने अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है मल्टीफोल्ड किया है इसमें। और जो 30% ज्वेलरी है वो एंटिक ज्वेलरी है, कुंदन ज्वेलरी है, या जो ट्रेडिशनल टाइप का ज्वेलरी है उस टाइप का बिकता है। ओके। और जो अभी आप रेवेन्यू का बात कर रहे थे, रेवेन्यू जो है सेल्स तो अच्छा है कंटिन्यूसली। और जैसे FY23 का जो हमारा रेवेन्यू है अराउंड 480 करोड़ तक है, और कंटिन्यूसली वो इंक्रीज होता जाएगा। हमारा डिमांड्स कंटिन्यूसली है, जैसे आपने बताया सीजनल डिमांड नहीं है। जब तक धरती पे लोगों का शादी होता रहेगा, जब तक धरती पे लोग हैं, तब तक ये डिमांड चलता रहेगा गोल्ड का। दैट इज फाइन विकास जी, बहुत बराबर और सही आपने बोला। विकास जी, मेरे को बताइए B2B जो आपका अरेंजमेंट है और B2C अरेंजमेंट है, इसमें B2C में आपका कोई अरेंजमेंट है कोई दूसरे एजेंट्स या थोड़े मार्केटिंग लोगों के साथ? क्योंकि आप तो चेन्नई में बेस्ड हो, बट आपका प्रोडक्ट जैसे आपने बोला कि B2C भी है, थोड़ा बहुत B2B है, तो इसके बारे में बताइए कि अभी फिलहाल व्हाट इज द मिक्स ऑफ B2B एंड B2C, इफ यू कैन गिव अस ब्रॉडली द शेयर ऑफ these two segments in the business. करेक्ट सर। सर अभी देखिए, जो हमारा मेजर ऑफ द सेल है B2B है, और 10% ऑफ हमारा जो टर्नओवर है वो अराउंड B2C है। और लेकिन अभी जो हमारे प्रोडक्ट्स जो B2B कस्टमर लेके जाके, हमारे जो B2B कस्टमर्स लेके जाके उनकी शोरूम में डिस्प्ले कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट आके उनके एंड कंज्यूमर बहुत अच्छी तरीके से लाइक कर रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारा मैन्युफैक्चरिंग और हमारा डिजाइनिंग एंड कंज्यूमर तक बहुत लाइक हो रहा है, बहुत पसंद आ रहा है उनको।
तो हमको ये पूरा कॉन्फिडेंस है, जैसे ही हम B2C पे एक्सपेंशन सोचेंगे तो उसका बहुत ओवर हीलिंग रेस्पॉन्स मिलेगा हमको। बिल्कुल। आई थिंक आपने सही कहा कि B2C एक बहुत बड़ा मार्केट है, बट विकास जी मुझे बताइए, अगर हम B2C मार्केट में एंटर करते हैं, जो हम जरूर करेंगे क्योंकि हमारे डिजाइन आर लाइक बाय द कस्टमर्स, मेरे को बताइए कि इसके लिए आपको ब्रांडिंग, फिर थोड़ा बहुत मार्केटिंग, इसके लिए भी मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट बिल्कुल, करना पड़ेगा। तो इसके हमारा बारे में कब ब्रांडिंग और यस यस हमारी ब्रांडिंग और मार्केटिंग टीम कंटिन्यूअसली उसके ऊपर काम कर रही है और हर रोज हमारा उसके ऊपर फोकस है। और हमारा जो ब्रांड है खजांची ज्वेलर्स साउथ इंडिया में आज बहुत फेमिलियर है, ओके क्योंकि हम लोग 60 इयर्स से उनको कंटिन्यू सर्व कर रहे हैं और कस्टमर टू कस्टमर बेस हमारा बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है दिनों दिन। ओके हमारा कस्टमर लिस्ट कंटिन्यू बढ़ रहा है और जो हमारे प्रोडक्ट्स है, हमारा B2B सेगमेंट में जो भी प्रोडक्ट नया लॉन्च होता है, हमारी मार्केटिंग टीम हमारे B2B क्लाइंट की स्पेस पे जाके उनको दिखाती है, प्रोडक्ट के बारे में समझाती है। तब उनको पता चलता है कि भाई हाँ, इस तरीके का प्रोडक्ट फ्यूजन प्रोडक्ट है। ऑल ओवर इंडिया में क्या होता है, खाली राजकोट में बनता है वही माल, राजकोट तक का ही सारा मैन्युफैक्चरिंग एक जैसा आ जाता है। हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट के पीसेस मुंबई से आए, कुछ यहाँ से राजकोट से आए, उसका फ्यूजन फॉर्मेशन किए, तो वो ओके एक डिफरेंट हो जाता है, ताकि उनके B2B स्टोर पे भी वो थोड़ा प्रीमियम पे बिकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक अंडरस्टूड विकास जी, बहुत अच्छी तरह से आपने समझा। अभी मेरे को बताइए विकास जी, हमारा जो प्रोडक्ट रेंज है, हम ज्वेलरी ज्यादातर चेन्नई में बेचते हैं, इवन आउटसाइड चेन्नई भी जाता है। तो प्राइस रेंज कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, यानी लोअर टू अपर रेंज, अगर आप थोड़ा सा आइडिया दे कि व्हाट इज द काइंड ऑफ प्राइस रेंज व्हिच वी ऑपरेट फ्रॉम द लोअर, मिडिल एंड द अपर रेंज, यू कैन गिव अस सम आइडिया। ओके, देखिए प्राइस तो हम फेयर प्राइस पे बिलीव करते हैं पहले तो, वेदर इट में बी B2B और B2C। और जनरल इंडस्ट्री मार्जिन जो है वो B2B मार्जिन जो होता है 3 to 4% होता है और रिटेल डिविजन होता है 7 to 8, 8 to 9% पे चलता है। और जो प्राइसिंग होता है डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एंड डिपेंडिंग ऑन इट्स टर्न अराउंड स्टॉक के टाइमिंग के हिसाब से होता है प्राइसिंग। जैसे कोई स्टॉक जो फास्ट टर्न अराउंड होता है उनका प्राइसिंग कम्पिटिटिव होता है, और जो थोड़ा सा स्लो चलता है जैसे कोई कुंदन का है, एंटिक्स है, जिनका डिमांड मार्केट में रीजनेबली स्लो रहता है, बट उस पर थोड़ा हाई मार्जिन रहता है कंपनी का। बट हम ये कह सकते हैं विकास जी की मोटा मोटी जो स्टार्टिंग रेंज है वो करीबन 20-25 हजार से शुरू होता है और लाख रुपए तक लाइक जाते दिस, हैं। ओके, कहने का आप मतलब इंडियन वैल्यू के हिसाब से बताना चाह रहे हैं। मोटा मोटी जो हमारा जैसे लाइट वेट इयरिंग स्टड्स है, रिंग्स है और छोटा डायमंड रिंग्स है वगैरह, वो सारा समझिए ना कि भाई 15,000 की रेंज से चालू हो जाता है। और नियर अबाउट प्रोडक्ट्स जो हम रख रहे हैं, मेजर ऑफ द प्रोडक्ट्स हैज पर दी डिमांड्स रखते हैं, जैसे नियर अबाउट 2 lakhs तक का प्रोडक्ट्स मेजर रखते हैं। उसके बाद जो ब्राइडल कलेक्शंस होती है वो होती है अराउंड 8 to 9 lakhs तक आ जाती है, और वो प्रीमियम कलेक्शन जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 14 lakhs 15 lakhs तक आ जाती है। ठीक, नाउ अंडरस्टूड। अच्छा विकास जी, नाउ कमिंग टू द ओवरऑल मार्केट अपॉर्चुनिटी, अभी जिस प्रकार का ग्रोथ हम ज्वेलरी मार्केट में देख रहे हैं, वी आर सीइंग अ वेरी स्ट्रांग ग्रोथ इन ज्वेलरी। इनफैक्ट B2C में तो ग्रोथ दिख ही रहा है आपको, B2B में भी ऑब्वियसली स्ट्रांग ग्रोथ दिख रहा है। आपके हिसाब से ग्राउंड सिग्नल से आपको क्या लग रहा है कि अगले 2-3 साल ज्वेलरी सेक्टर के लिए कैसे रहेंगे? क्योंकि देखिए जो ब्रांड विजिबल है, जिनका प्रोडक्ट्स एक्सेप्टेबल है, वहां पे तो ग्रोथ जो काफी सिग्निफिकेंटली हो रहा है, लेकिन पिछले 1-2 साल से हम देख रहे हैं कि ज्वेलरी बिजनेस हैज बीन ग्रोइंग वेरी रैपिडली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो एरिया है चेन्नई, साउथ साउथ इंडिया, आपको क्या लगता है कि ये जो डिमांड है ये और तेजी से बढ़ेगा? मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने फाइनेंशियल FY23 का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बताया। मैं देख रहा था कि फर्स्ट हाफ ऑफ FY24 आपका प्रॉफिट बहुत अच्छी तरह से बढ़ा है। 15 करोड़ का प्रॉफिट मेरे ख्याल से आपने बनाया। तो which possibly was the profit of last year. So in fact in terms of profitability भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया। तो ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ आपको क्या लगता है अगले 2-3 साल? हाउ डू यू थिंक द इंडस्ट्री विल ग्रो एंड हाउ विल खजांची ज्वेलर्स कैपिटलाइज ऑन दिस ग्रोथ? इफ यू कुड शेयर योर थॉट्स। सर, जो डिमांड्स है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम हमारा एक्सपीरियंस जो है डिकेड्स का है, करीबन 40+ इयर्स का एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ ज्वेलरी में। और जैसे हमारे मैन्युफैक्चरर्स है वो आके जो
लॉन्ग टाइम से, जैसे 30 to 40 ईयर्स से कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो उनका डिजाइनिंग का मोनोपोली रखते हैं। और जैसे हमको क्या है, कस्टमर को राइट क्वालिटी, सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स राइट प्राइस में देने का हमारा एजेंडा है। और सारा हमारा मॉनिटरिंग जो होता है, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर काफी उसके ऊपर कीन रहते हैं कि भाई राइट प्रोडक्ट राइट प्राइस पे जाना चाहिए क्लाइंटल को। और हमारा क्लाइंटल बेस कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। वी हैव ए ह्यूज सेटिस्फाइड क्लाइंट्स। और जो डिमांड है आगे आने वाली टाइम में, गोल्ड जो अपनी प्राइस के लिए ही प्राइस कंटिन्यूसली अप्रिशिएट होता जा रहा है गोल्ड का, उसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स में भी हमको बार बार चेंजेस लेके आने पड़ते हैं कि जो प्रोडक्ट 40 ग्राम्स में बनता था पहले, वो प्रोडक्ट हम करीब आज 22-23 ग्राम्स में बना रहे हैं। क्योंकि पिछले 10 सालों में जो प्रोडक्शन का स्टाइल है काफी चेंज हो गया है। तो आज वो जो 40 ग्राम्स की रिलायबिलिटी थी, आज वो 22 ग्राम्स में भी उससे ज्यादा रिलायबल हो रहा है प्रोडक्ट भी। और डिमांड्स जो है 24-25 कंटिन्यूसली 35-40% पे ग्रोथ होता जाएगा सर। अच्छा, ज्वेलरी इंडस्ट्री में कहीं पे डाउनफॉल नहीं दिखता है, ओवरऑल इंडस्ट्री अच्छा है। ठीक है। अभी आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट बताया कि जो 40 ग्राम का पहले बनता था अभी 20-25 ग्राम में बनता है, तो उसका मतलब हम ये मान के चले विकास जी की जो यील्ड है, यानी कम वजन का ऑर्नामेंट, आप गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो ऑब्वियसली आपको प्राइसिंग में भी फायदा मिलता है, प्लस आपका गोल्ड का कंजम्पशन एक्चुअली भी कम होता है, क्योंकि जहाँ पे 40 ग्राम आप पहले नेकलेस के लिए यूज करते थे या कोई दूसरे ऑर्नामेंट के लिए बनाते थे, आप अभी 25 ग्राम यूज करते। तो ये मेरे ख्याल से इन इनडायरेक्ट वे फ्रॉम अ फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट ये तो काफी अच्छा रहेगा ना, क्योंकि मटेरियल कंजम्पशन कम है लेकिन रियलाइजेशन इज बेटर। सो इज माय यस, ये बहुत अंडरस्टैंडिंग अच्छा। राइट? यस, राइट, यू आर राइट। ओके, सो ये बहुत ही अच्छी बात है। इनफैक्ट दिस इज अ वेरी यूनिक वे ऑफ इंप्रूविंग योर ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी। बट मेरे को एक बात बताइए सर कि नॉर्मली गोल्ड का प्राइस जब बढ़ता है तब मोटा मोटी आपका जो प्रोडक्ट होता है उसमें किस प्रकार का प्राइसिंग होता है? मान लीजिए मैं जनवरी में आपके शोरूम में आ गया, आई बॉट अ ज्वेलरी एट लेट्स से 50,000 रुपीज और 1 लाख रुपीज। Now in February some other customer comes and the gold price has gone up. Now how will the pricing change? Will it remain same or will it increase at your shop end level? सर बेसिकली देखिए, गोल्ड जो होता है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे चलता है शोरूम का। जैसे हमारी स्टोर में आज 3 किलो माल बिकता है, तो एंड ऑफ द डे हमारी कंपनी 3 किलो प्योर परचेज कर लेती है। हाँ, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट से चलती रहती है। ये जो भी गोल्ड कंपनी का है, वो कंपनी का असर्ट है। वो कंटिन्यूसली जितना गोल्ड आज बिका उतना गोल्ड ले लेती है। उनको प्राइसिंग से ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। कस्टमर आज 68,000 में गोल्ड ले रहा है, तो कंपनी भी एंड ऑफ द डे उसको फिर से स्टॉक करके रख लेती है। ठीक है। और ओवरऑल हम जो बिलीव करते हैं कि भाई कस्टमर को रिपीटेटिवली आना चाहिए कस्टमर अपने पास, ताकि क्या होता है कि भाई आज कस्टमर को राइट क्वालिटी और सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स अपन राइट प्राइसिंग में देंगे, तभी वो कंटिन्यूसली आएगा। और हमारे पास ऐसे कस्टमर है जो कंटिन्यूसली 4-5 डिकेड से आ रहे हैं, और डे बाय डे बाय वर्ड ऑफ माउथ इतना हमारा वॉल्यूम ऑफ कस्टमर बेस बढ़ रहा है कि हम उससे काफी हैप्पी है। और वो कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारा फोकस रहता है कि भाई मार्केट कंपटीशन के साथ साथ अपना कस्टमर को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और रिलायबिलिटी पे ज्यादा ध्यान दें। बरोबर, एग्जैक्टली। चेन्नई जो साउथ में हमारा जो जो प्रेजेंस है, इन टर्म्स ऑफ द रिटेल शोरूम, डू वी हैव 1, 2 और 3 शोरूम्स? हमारा एक्चुअली ज्योग्राफिकल प्रेजेंस साउथ में कितना है, अगर इफ यू कैन गिव अस सम आइडिया। सर देखिए, हमारा जो करंटली रिटेल स्टोर है 130 एनएससी बोस रोड पे है, एक रिटेल स्टोर है हमारा। और हमारा जो नया रिटेल स्टोर खुल रहा है वो एनएससी बोस रोड में खुल रहा है, जो कि भाई बॉम्बे में कैसे आपका जवेरी बाजार एक फेमस है इंडिया में, उसी प्रकार में साउथ इंडिया में एनएससी बोस रोड एक फेमस हब है ज्वेलरी के लिए। तो आज का कोई भी बड़ा परचेसेस है, B2B है, B2C है, वो कोशिश करता है इधर इधर आके मार्केट एक्सप्लोर करके कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में और बहुत वैरायटी देख के ले। ओके, तो हमारा जो एनएससी बोस रोड में अभी जो शोरूम आ रहा है, जिसका काम फुल फ्लेज में चल रहा है, एग्जिस्टिंग हमारा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर का काम हो चुका है, वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई नेक्स्ट ईयर 2025 में हम उसको ओपन कर देंगे। और वहां पे हम कार पार्किंग फैसिलिटीज के साथ और प्रीमियम एम्बियंस दे रहे हैं, ताकि क्लाइंट आराम से सारा वैरायटी एक ही जगह देख सकता है। देखिए क्या होता है, ब्राइडल के लिए जब वो आता है क्लाइंट,
तो उसको सारा सेगमेंट्स का माल दिखाते हैं, तो उनको इजी होता है सिलेक्शन के लिए। ओके और जो बाकी जो अभी स्टोर्स है, जैसे छोटे छोटे स्टॉक्स रखती है, तो एट ए टाइम उनको पूरा स्टॉक देखने को नहीं मिलता है, तो वो बिल्कुल हमारा एक की फीचर है। ओके मैं अंडरस्टूड। विकास जी, ये नया जो शोरूम है, ये आप कह रहे हैं कि अगले साल बाय 25 इट विल बी ऑपरेशनल, तो इसके ऊपर मोटा मोटी खर्चा कितना हो गया हमारा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से? सी अप्रोक्सीमेटली द टोटल वैल्यूएशन जो हमारा इसके ऊपर खर्चा होगा, नियर अबाउट फुल कंप्लीशन पे 8 करोड़ तक का होगा, और नियर अबाउट अभी तक जो हो गया नियर अबाउट 3 करोड़ का हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है। ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी द मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर अस, ये हमारा बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है ना? हाँ, इसके अलावा कोई मेजर नहीं रहेगा। अच्छा उसके विकास जी, अलावा नाउ जो है वर्किंग कैपिटल वो ओवर तो हाँ, एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल से शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वर्किंग कैपिटल के बारे में ही मेरे को पूछना था आपका विकास जी, कि हमारा जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है, देखिए इन्वेंट्री तो आपको गोल्ड का स्टॉक करना ही पड़ेगा, क्योंकि डिमांड आएगी, आपको यू हैव टू कीप इन्वेंट्री ऑफ गोल्ड रेडी टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। तो मोटा मोटी सर हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना बड़ा है? फ्रेंकली, जब फ्रॉम द टाइम यू मेक द ज्वेलरी, यू सेल इट टू द कस्टमर, यू कीप दैट ज्वेलरी इन द शोरूम, एंड देन फाइनली इट इज रियलाइज, ये वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना बड़ा होगा इन नंबर ऑफ डेज? अगर आप हमको बताएं कि यस, इन्वेंट्री और बिल्कुल बता सकते हैं सर। देखिए सर, हमारा वर्किंग साइकिल जो करंटली है नियर अबाउट 70 to 80 डेज पे चल रहा है। ओके और कंटिन्यूसली हम उसको करेक्ट कर रहे हैं कि भाई वॉल्यूम्स ज्यादा हो रहा है, जैसे जैसे वो 70 to 80 डेज है, वो घट के जैसे कुछ टाइम के बाद 50 to 60 डेज और कुछ टाइम के बाद और कम हो जाएगा। उससे क्या होता है, हम प्रोडक्ट को ऐसा बनाते हैं कि भाई वो फास्टली रोटेट हो, ना ही हमारे शोरूम में, बल्कि जो B2B क्लाइंट्स हमारे लेके जाते हैं उनके शोरूम में भी B2C क्लाइंट उनको फास्टली सेलेक्ट करे, उनको भी इनकैश जल्दी होए। तो हमारा वर्किंग हमेशा प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में रहता है, और करंट वर्किंग साइकिल जो है 70 to 80 डेज है सर हमारा। नहीं विकास जी, आई अंडरस्टूड दिस, बहुत अच्छा तरह से आपने समझा, लेकिन ये 70-80 दिन में इन्वेंट्री का कितना कंपोनेंट होता है? बिकॉज देखिए, ज्वेलर के पास आप जब जाते हो, सभी को पता है कि आपको आइदर कैश या चेक में पेमेंट करना पड़ता है, वहां पे क्रेडिट तो लगता ही नहीं है। यू हैव टू मेक द मनी एंड यू हैव टू टेक द प्रोडक्ट। तो नॉर्मली एग्जैक्टली। इन्वेंट्री का कितना कंपोनेंट होगा ये 70-80 दिन में? व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ इन्वेंट्री इन द वर्किंग कैपिटल? इन टर्म्स ऑफ वेट। नहीं नहीं, इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल नंबर ऑफ डेज, आपने 70-80 डेज बोला ना, 70-80 दिन। वैसे मैं मान के चलूं कि 70 दिन, 65-70 दिन तो प्योरली इन्वेंट्री का ही हाँ, ये क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए कि भाई 100 प्रोडक्ट है, 100 प्रोडक्ट को पूरा घूमने के लिए 70 to 80 डेज लगता है। बरोबर, ओके ओके, समझ गए आप? नहीं ठीक है, बिकॉज आई मीन फ्रैंकली स्पीकिंग, आपका जो डेटर्स होता है, जो कस्टमर्स होते हैं, वो तो ऑब्वियसली आपको पेमेंट चेक कैश में तो इमीडिएटली देते हैं। सो आई वाज जस्ट वांटिंग टू नो कि ज्यादातर जो वर्किंग कैपिटल है, इट इज बेसिकली लॉक्ड इन इन्वेंट्रीज में ही यस, ज्यादातर। ज्यादातर हमारी वर्किंग कैपिटल इन्वेंट्री पे रहती है। उससे क्या होता है, हमारे B2B क्लाइंटल जब आते हैं हमारी स्टोर पे, यही हमारी स्पेशलिटी है कि भाई वो बहुत सारा प्रोडक्ट्स देख के सिलेक्ट कर सकते हैं। बराबर बराबर। उनको बाकी जगह पे क्या होता है कि भाई हमारे लिए 10 किलो चेन बना देना बोल के जाना पड़ता है, इधर ऐसा नहीं है। हाँ 10 किलो नहीं, 100 किलो चेन में से तेरे को 10 किलो चाहिए, आराम से सेलेक्ट करके फिनिशिंग चेक करके तू सेटिस्फाइड होके लेके जा। बरोबर, ठीक है। विकास जी, नाउ ओवरऑल मुझे आपसे पूछना है कि देखिए, हम हमारा प्रोडक्ट बहुत क्वालिटी वाइज अच्छा है, डिजाइन अच्छा है, प्राइसिंग इज वेरी गुड। तो मेरे को बताइए सर, ऑब्वियसली इन एवरी इंडस्ट्री कंपटीशन तो होता ही है, ऐसा नहीं कि कोई एक ही खिलाड़ी होता है। मेरे को बताइए, इन व्हाट वे आर वी डिफरेंट, इन टर्म्स ऑफ आवर प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ आवर सर्विस, इन टर्म्स ऑफ आवर प्राइसिंग, और दूसरे कॉम्पिटिटर से, विदाउट टेकिंग नेम्स, दूसरे प्लेयर से हम काम बेहतर कैसे करते हैं? इफ यू कुड शेयर 2-3 क्वालिटेटिव पॉइंट्स, बिकॉज देखिए, जो चीज बैलेंस शीट में और एनुअल रिपोर्ट में आती है वो तो सभी लोग देखते हैं, बट क्वालिटेटिवली हाउ कैन यू से व्हाट आर द पॉजिटिव्स ऑफ खजांजी in terms of the product, in terms of the quality, pricing, and where do you actually stand out compared to other players in the same region? करेक्ट सर। सर देखिए, एक तो फर्स्ट हमारा डिफरेंट है कि भाई हमको वास्ट एक्सपीरियंस है 5 डिकेड का, और सेकंड जो है हमारा जो शोरूम एग्जिस्टिंग है, हम B2B हब में हैं, और जो भी बड़े क्लाइंट्स होते हैं, HNI क्लाइंट्स है, और जिनको क्वांटिटी में लेना होता है, वो जरूर इस मार्केट को एक्सप्लोर करता है।
प्राइसिंग वाइज, वैरायटी वाइज, सब कुछ। तो और हम डिफरेंट इसमें है कि भाई हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स और उनके ब्रदर्स वगैरह जो इसी बिजनेस में इन्वॉल्व है, हर पॉइंट पे उनका क्वालिटी चेक से लेके बाकी सारा फाइनेंशियल्स पे परफेक्ट फोकस रहता है। और जो आर्टिशियंस है हमारे, जो हमारे से हमसे 30 इयर्स 40 इयर्स से जुड़े हैं, उनका जो वर्कमैनशिप है वो स्पेशलाइज्ड रहता है। और वो डे टू डे उनकी फैक्ट्रीज में नई मशीनरीज का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, अभी जैसे अपन पहले देख रहे थे कि भाई इटालियन ज्वेलरी है, अलग बनता है इटालियन में, आजकल क्या हो रहा है, वो लोग ही इटाली का मशीन्स वगैरह इंपोर्ट कर दे रहे हैं। तो हम लोग क्या होता है, ह्यूज वैरायटी एट सिंगल रूफ दिखा दे रहे हैं कस्टमर को। उससे क्या होता है, क्लाइंट को बल्क परचेजेस करने में बहुत इजी होता है। ये हमारा की डिफरेंसेस है बाकी उससे। ओके, ठीक है विकास जी, अंडरस्टूड प्रॉपरली। विकास जी, नाउ मेरे को बताइए कि हमारा जो फोकस है वो ज्यादातर बी टू बी रहेगा कंटिन्यूसली, क्योंकि बी टू बी तो अभी ज्यादा है, लेकिन बी टू सी में हम सब जानते हैं कि मार्जिन भी काफी अच्छे मिलते हैं। आप भी कह रहे थे कि बी टू सी में 7-8% मिलेंगे, तो अभी हमारा 10% है। तो कैन वी एज्यूम दैट अगले 2-3 साल में ये 10% कम से कम 20-25% हो, ताकि मार्जिन भी अपना इंप्रूव हो, अपनी कस्टमर से अपना रियलाइजेशन भी इंप्रूव हो? तो ये ऐसा कोई स्ट्रेटेजी कंपनी प्लान कर रही है? बिल्कुल सर, ये देखिए जैसे आपने मैं आपको बताऊं कि भाई करंटली जो कंपनी वर्किंग कर रही है, अप्रोक्सीमेटली 1200 स्क्वायर फीट का कंपनी का वर्किंग स्पेस है, जो बढ़ के करीबन 10,000 स्क्वायर फीट हो जाएगा। उससे क्या होगा, कस्टमर को एक प्रोडक्ट देखने में, समझने में बहुत एलाबरेटली डिटेलिंग कर पाएंगे हम लोग। और उसके साथ उसको फैसिलिटी मिल जाएगा, भाई कार पार्क हो गया, बाकी फैसिलिटीज उसके पास हो गई। और ये जरूर ये फिगर्स जो है, जो हमारा करंट रिटेल सेल है, जो 10% ऑफ द वॉल्यूम हमारा है, दैट विल ग्रो अबाउट 30% और 40% ऑफ द वॉल्यूम। और उसी प्रकार से बी टू बी वॉल्यूम भी बढ़ेगा। हमारा फोकस साइमल्टेनियस रहेगा सभी सेक्टर में, लेकिन ये जो नया शोरूम आ रहा है बी टू सी पे ज्यादा फोकस रहेगा उस शोरूम पे। ओके, ओके। नहीं, इनफैक्ट मैं ये समझ के लूंगा, उसका मतलब प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि FY 25-26 जब आपका ये नया शोरूम आएगा, तभी होपफुली वी कैन सी अ सिग्निफिकेंट जंप इन रेवेन्यू, बिकॉज आपका नया शोरूम भी चालू हो जाएगा, आपका B2C फोकस भी इंक्रीज होगा। तो कैन वी एज्यूम दैट 25-26 विल बी लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग ईयर, बिकॉज आपका शोरूम 25 में आएगा, मार्च अप्रैल तक आएगा, तो ऑब्वियसली उसका पूरा इम्पैक्ट जो है वो आपको अगले साल मिलेगा। तो मोटा मोटी हम ये समझ के चले कि दिस ग्रोथ विल बी सिग्निफिकेंटली बेटर देन FY 24, क्योंकि ऑलरेडी FY 24 में आपने पहले 6 महीने में 400 करोड़ का रेवेन्यू तो ऑलरेडी किया है, जो लास्ट ईयर करेक्ट, आपका पूरे साल का रेवेन्यू था। प्रॉफिट भी मैं करेक्ट। देख रहा था कि 15 करोड़ था, आपने 15 करोड़ पहले 6 महीने में किया है। तो मोटा मोटी विकास जी, मैं ये समझ लूं कि ये ग्रोथ का ट्रैक्शन सस्टेन रहना चाहिए मेरे ख्याल से। एटलीस्ट जो फर्स्ट 6 मंथ में हमने दिखाया है रेवेन्यू और प्रॉफिट, दैट शुड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट 6 मंथ फॉर दिस ईयर, एंड FY 25-26 शुड बी मच बेटर according to you. Is it right? हाँ जी, बिल्कुल रहेगा। और ग्रोथ जो है बाई 28 तक हम 4x ग्रोथ तक देख रहे हैं। और कंटिन्यूसली 35%, 30 to 35% कंपनी ग्रेजुअली आराम से ग्रो करेगी। और हाई मार्जिनेबल प्रोडक्ट्स जो हम रिटेल में ऐड करेंगे, उससे काफी कंपनी को मार्जिन्स में फर्क आएगा और उनका वॉल्यूम्स भी। अब देखिए क्या होता है, हाई प्रोडक्ट लेने को आता है क्लाइंटल को वैसा एम्बियंस और हाँ, वैसा फैसिलिटी चाहिए, बरोबर, तो वो सही। जरूर हमारे नंबर्स में दिखेगा सर। ओके, और दूसरी बात, मेरे को एक ब्रॉड आइडिया दे दीजिए कि करंटली हमारा जो डेट है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, मोटा मोटी विकास जी हमारा कितना वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डेट होगा एज ऑन डेट, इफ यू कैन स्पेसिफाई प्लीज। हमारा नया शोरूम में जो भी वर्किंग कैपिटल रहेगा, हमको यहाँ से शिफ्ट ऑफ हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल ही मैनेज हो जाएगा और नया हमको डेट लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, so basically debt will be maintained at whatever levels यस, it इट is विल there बी now. मेंटेन्ड एट द करंट लेवल, नो इंक्रीज इन डेट्स। अच्छा विकास जी, नाउ लास्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी तो धंधा बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, वी विश दैट ऐसा ही ट्रेंड आगे भी आपको मिले। बट हमारे बिजनेस में नॉर्मली जो सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? इज इट गोल्ड प्राइस? और सेकेंडली, हम गोल्ड को हेज करते हैं क्या? तो इसके बारे में बताइए। और इतने साल का एक्सपीरियंस आपके कंपनीज के प्रमोटर को है, आपको है, ऐसा कोई चैलेंज आपने देखा है इस धंधे में
कि जो बहुत ही इस इंडस्ट्री को तकलीफ उसने दी है, लेकिन उससे भी आप निकल गए, बिकॉज काफी बड़ा हिस्ट्री है आपका। तो एनीथिंग विच यू कैन शेयर विद अस, हाउ यू हैव मैनेज दिस रिस्क इन सच अ प्रॉपर वे फॉर सो मेनी इयर्स, एंड गोल्ड प्राइसिंग पे आपका क्या पॉलिसी है? मान लीजिए गोल्ड का प्राइस बढ़ गया या घट गया, तो उसका आप हेजिंग करते हैं क्या? तो ये जरा बताइए। सर, हमारी कंपनी गोल्ड मेटल लोन नहीं लेती है, हमारी कंपनी गोल्ड को हेज नहीं करती है। हैज डेटा दिखा रहे हैं, गोल्ड कंटिन्यूअसली अप ही जा रहा है। गोल्ड को एक असेट रॉ मटेरियल मान के कंपनी उस गोल्ड को कंटिन्यूस मेंटेन करती है। और सेकेंडरी जो आ गया, हमारा मैनेजमेंट को डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, जैसा आपने बताया। तो सारी जो भी अपने रिस्क रहती है उसको एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं हम लोग। और जैसे आपने बताया कि भाई क्या टाइप का रिस्क, जैसे नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गोल्ड बुलियन हो गया, डायमंड्स हो गया, जेमस्टोन हो गया, नहीं मिल रहे हैं मार्केट में। इन दिस उसका एक इफेक्ट यही रहेगा कि भाई एज ए रिजल्ट हमारा कंपनी को प्रॉफिट पे थोड़ा फर्क आ सकता है। और बीइंग एन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, ये सारी चीजों को हम अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं और उनका बैकअप रखते हैं। और प्राइस पे हमारी कंपनी को, चाहे प्राइस आज कितना भी वॉलेटाइल हो, उस पर कोई मेजर रिस्क नहीं रहता है हमको। अभी हम 5 डिकेड से हैं, तो जो भी उसका अप्स एंड डाउन्स है, सारे तरीके से हमको हैंडल किया हुआ है और हमने सारा अप्स एंड डाउन्स देखा हुआ है इंडस्ट्री में। एग्जैक्टली। और आज हम लोग इतनी सारी चीजों को टैकल करने के बाद हम लोग आज भी मतलब टॉप प्रोमिनेंट प्लेयर्स में है साउथ इंडिया में। आप हमारी कंपनी का नाम किसी को भी पूछेंगे तो वो बताएंगे कि भाई दे नो हाउ टू मैनेज द रिस्क कंप्लीटली। और इनफैक्ट जो हमारे B2B क्लाइंट्स है, लिस्ट ऑफ B2B क्लाइंट्स है, उनको भी हम कंटिन्यूसली सजेस्ट करते हैं कि भाई गोल्ड मेटल लोन या गोल्ड को हेज करके लंबा नहीं चले। जैसे आप कंटिन्यूसली चार्ट देख रहे हैं, गोल्ड पिछले 10 सालों में कंटिन्यूसली 15, 16, 14% का रिटर्न दे रहा है। तो वो बेनिफिट भी एक ज्वेलर को होता है। और ओवरऑल एक ज्वेलरी इंडस्ट्री अच्छा है, जब तक मैनेजमेंट कोई रॉन्ग हेजिंग नहीं कर ले या अपना एग्जिस्टिंग स्टॉक एक ही प्राइस पे नहीं बेच दे। गोल्ड इंडस्ट्री में कोई लंबा रिस्क नहीं है, बहुत अच्छा इंडस्ट्री है, फ्लरिशिंग इंडस्ट्री है। आई थिंक वेरी नाइसली मेंशन्ड बाय यू विकास जी। तो एनीवे विकास जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी तरह से आपने हमको समझाया कि कंपनी का ऑपरेशन क्या है, किस तरह से बिजनेस आपका ग्रो करेगा। सो प्लीज एक्सेप्ट माय बेस्ट विशेस टू यू, योर एंटायर मैनेजमेंट टीम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी, थैंक यू।